So today we have Mr. Toshiful Hakansari in front of us. So very congratulations sir for completing 31st judiciary. Today we'll be talking about your complete journey throughout your preparation related to judiciary. So sir, it will be great if you will tell us about your background, how you were you switched into judiciary, what was your educational background, and a lot of things around. So over to you sir. First of all, I'd like to thank you and thank you very much. I did my schooling from DN High School, which is situated in Muzaffarpur, and thereafter I did my 12th from RDS College, which is itself in Muzaffarpur. And since I had to be a CA, to become a CA, that's why I have chosen commerce stream in class 12. But since my father is an advocate in Muzaffarpur, and whenever he talk about the judiciary, and formally he used to dictate me bail orders, bail writings, whatever, and complaint cases. It encouraged me to be a part of judicial system. So I have cleared Calcutta University entrance examination, but due to my some medical issues in the family and the personal causes, I could not get there. So, but I have to pursue law. So I itself entered in SKJ Law College, that is Sri Krishna Jubilee Law College in Muzaffarpur, and in which I have done my BA LLB from 2013 to 2018. And so before we talk about your college journey, so since you said that you were in commerce stream, so it was not always there you always wanted to be a judge or enter into legal fraternity. Like it was not that prepared कि आपको law ही करना है. So it is your father who inspired you to pursue law. Apart from that, sir, how was your college journey? From the first day of my college, there's a back in mind that I have to be clear judge. Judges so it was there कि आपको judge ही बनना है, because there is a lot of you have a lot of choice when you enter into legal fraternity, and since your father is also like a advocate, so he's practicing if I'm not wrong. Yeah. So आपके पास वो भी एक option था कि आप अपने father के साथ, because that seems easy क्योंकि आप second generation होते हैं अपने family में, second generation lawyer, so that would be easier for you, but then still you choose to be a judge. तो वो क्या है sir? लेकिन जैसे ही मतलब जब भी बात होती थी जुडिशियरी की, तो मेरे पापा क्या करते थे कि वो मुझे बताते थे जज के बारे में और कोर्ट रूम के बारे में. तो वो जब भी मतलब बिहार में जनरली जज को हाकिम कहा जाता है और हाकिम से जनरली जाने जाते हैं, तो वो जब भी हाकिम के बारे में बताते थे उनके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल होती थी. तो उस वक्त से मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे जज बनना है, और उस वक्त से मैंने फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज से मैंने तैयारी शुरू की, सेल्फ स्टडी ही किया, और फिर बाद में कामेश्वर प्रसाद सर के पास मुझे आने का मौका मिला. आई थिंक मैं 4th ईयर में था तब सर के पास आया, और सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे. So you started your preparation in your 4th year. जब आप 4th year में थे कॉलेज के, तभी से जुडिशरी के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. जी बिल्कुल. Okay, so again switching up to the very important question कि आपने आपकी prelims की तैयारी कैसे करी? Like what was your strategy throughout? आपने कैसे चीज़ों को figure out किया? Like since there is there are a lot of subjects, GK है, GS है, including all legal subjects. So what was your strategy? Like this will be very fruitful to our viewers कि मतलब आपकी strategy क्या थी? आपकी अपनी personal strategy क्या थी? आपको institute से क्या मिला? आपको आपके mentor ने कैसे guide किया? So tell us about this. Since there are 3 stages of the Bihar Judicial Service examination, and there are different approach of all the 3 stages. If I would like to talk about the prelims stage, the candidate have to go through the singles questions bank, previous year questions bank. So you followed single question bank completely. जी, and there is also a book M.A. Rashid. Okay. वो MCQ से डील करता है जनरली, तो उसका भी मैंने प्रैक्टिस किया था, और सर का नोट्स जो कामेश्वर प्रसाद सर. नोट्स मतलब इट इज प्रोवाइडेड देयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. या तो वो सर का नोट्स बहुत अच्छा है, और मैंने थ्रू आउट द
कि तैयारी के दौरान मैंने पूरा सर के नोट्स ही से पढ़ा है। अच्छा। सो और ऑब्जेक्टिव्स आपने ऐसे सिंगल्स वगैरह से बनाए? सिंगल और एम ए राशिद की किताब आती है वो। अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो जीके जीएस इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, मतलब बहुत डिसाइडिंग होता है वो, 150 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स में, इट्स लाइक डिसाइडिंग। तो आपने जीके जीएस कैसे प्रिपेयर किया? जीके जीएस के लिए मैंने डीप स्टडी किया था यूट्यूब के जरिए, और ये लाइक आपने सेल्फ स्टडी किया जीके जीएस के लिए या फिर आपने मतलब किसी मेंटोर को फॉलो किया ऐसा? नहीं, जीके जीएस के लिए मैंने यूट्यूब से ही मदद लिया, और सबसे पहले मैंने डीप स्टडी किया वहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने लूसेंट वगैरह जो भी किताबें आती हैं उससे मैंने पढ़ाई की। करंट अफेयर्स वगैरह कैसे कवर किया? करंट अफेयर्स भी मैंने, क्योंकि सोशल क्योंकि मीडिया यूट्यूब इज इट सफिशिएंट जीके जीएस के लिए? या देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल इन द यूट्यूब, सो इट इज सफिशिएंट। मतलब आपकी अपनी एफर्ट्स काफी मैटर करती है व्हेन इट इज अप टू जीके एंड ऑल। तो सर दिस वाज योर प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो अगला स्टेप होता है हमारा जब हम मेंस पे जाते हैं, तो प्रीलिम्स तो सर काफी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल। पहला स्टेज इज लाइक द ट्रैश इज आउट प्रीलिम्स के बाद। उसके बाद जब भी लाइक स्विच ऑन टू मेंस, तो सर पहला क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को जो भी एस्पिरेंट्स हैं सबको ये आता है कि मेंस तो हो जाएगा बट ऑप्शनल कैसे चुने, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। अपार्ट फ्रॉम प्रोसीजरल लॉ, हम जब मेंस पे ऑप्शनल के लिए आते हैं तो कैसे चूज कैसे करें उनको, सर इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ऑप्शनल के लिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखें, जिस सब्जेक्ट्स में उनको इंटरेस्ट है वही वो ऑप्शनल सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए या फैमिली लॉ ले लीजिए या कमर्शियल लॉ ले आपके लीजिए। क्या सब्जेक्ट्स थे सर? मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। और आंसर राइटिंग एंड ऑल, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक कैसे प्रिपेयर करें? लाइक ऑप्शनल ले लिया, ऑप्शनल लेने के बाद चीज़ें आती हैं कि आंसर लिखना तो लाइक सबको ही लिख लेते हैं, बट द थिंग इज कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क, यू हैव टू राइट आंसर इन दैट पर्टिकुलर टाइम, then only the one like you are the one who can like switch on again to the next step of the examination. तो सर उसके बारे में कुछ टिप्स बताना चाहेंगे आप? When I was in the coaching in the Kautilya Law Academy, Sarva used to provide the answer writing itself, and he dictate how to write mains answer writing, and that helped me a lot. और उसके बाद भी मैंने खुद से घर पे ही सेल्फ स्टडी किया और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। और सर ये आंसर राइटिंग के अलावा सर लाइक हाउ फार आई नो कि टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू नो कि आप कितने पानी में आ रहे हैं। तो सर टेस्ट सीरीज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कितना इंपॉर्टेंट है? यूजुअली क्या होता है कि पीपल लाइक देयर इज अ फियर कि टेस्ट सीरीज में बैठने पे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर एनीथिंग अबाउट टू से अबाउट लाइक टेस्ट सीरीज? सी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट्स ट्रू। तो मैंने क्या किया, सर के यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और सर जो भी मैं आंसर राइटिंग करता था, सर उसको इवेलुएट करके आपके लूप होल्स को बताते थे कि ये यहाँ पे ये गलती है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ पे केस लॉज की ज़रूरत है। तो एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट मिला कामेश्वर प्रसाद सर से टेस्ट सीरीज के दौरान। इसके बाद सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू, लाइक व्हेन यू आर डन विद प्रीलिम्स मेंस, देन द मोस्ट डिसाइडिंग वन, जहाँ पे लाइक मतलब सारी स्किल्स तो आपकी टेस्ट हो चुकी है, तो जो इंटरव्यू के लिए है सर सबसे पहले तो सर वी एक्चुअली वांट टू नो कि हाउ वाज योर इंटरव्यू? माय इंटरव्यू वाज गुड। Actually, my interview was on the first day. Okay. And I was second or third candidate when I entered in the interview room. So how was your feeling सबसे पहले तो like क्योंकि it's very like most of the people, I think not most of the people, everybody is like very nervous. वो जो 5 मिनट होता है एंटर करने के पहले, how was your feeling? आपको क्या लगता है कि क्या सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? Sir, please tell us about that. देखिए, हर इंसान सबसे पहले जब इंटरव्यू फेस करता है तो उसको नर्वसनेस होती ही है। तो इससे पहले ये मैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दिया था। एट दैट टाइम आई वाज
appearing candidate in the year 2019. तो आपने राजस्थान भी क्लियर किया था इंटरव्यू तक? जी। ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। उसके बाद मैं यहाँ गया तो सबसे ज़रूरी चीज़ इंटरव्यू में है कि आप काम रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ है आप काम रहें और कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली टैकल करें। ये नहीं कि नर्वसनेस होके आप उसका कुछ भी जवाब ना दें। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो आप पोलाइटली सॉरी बोलें। कभी भी किसी चीज़ को फंबल तरीके से उसका आंसर नहीं करना है। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए। सर आपके क्या क्वेश्चंस थे? लाइक बस लीगल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर लाइक आउट ऑफ द वे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर बस लॉ से ही रिलेटेड होते हैं? कितने देर का इंटरव्यू होता है? एक्चुअली जनरली इंटरव्यू 10 से 12 मिनट की होती है और मेरे से सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सिंस जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अ सब्जेक्ट इन बिहार जुडिशरी, तो सर आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस दे हैव टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस, IPC एंड ऑल अदर लॉज which is laws like Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, protection of domestic of violence, protection of women from domestic violence act, and other legal developments they have to go through. Okay, like जो सब्जेक्ट्स आपके मतलब सिलेबस में नहीं है बिहार जुडिशरी में, अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। आपको मतलब लीगल डेवलपमेंट्स आपको आपके नॉलेज में होनी चाहिए। मतलब आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट सिलेबस। ओके, तो सर मतलब सिंस लाइक यू ऑब्वियसली यू डिड वेरी वेल इंटरव्यू, तो सर आपने इंटरव्यू के भी क्लासेस किए होंगे, लाइक जो भी सेशंस चले होंगे सर, तो उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करिए। क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और सर यहाँ पटना में क्लासेस लेते थे और सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंडक्ट कराया था इंटरव्यू। तो मैं ऑनलाइन के ज़रिए सर के पास जुड़ा था और ये मुझे बहुत हेल्प किया। तो आपने इंटरव्यू सेशन पूरा प्रॉपरली किया यहाँ पे? जी। और मुझे कहीं से तो भी पता चला था ये चीज़ कि आप लाइक काफ़ी मोटिवेटेड रहे हमेशा सर से। सर ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया और आज से नहीं, काफ़ी सालों पहले सर ने शायद आपको प्रेडिक्ट किया था ये चीज़। तो लाइक अगर आप ये अपने व्यूअर्स को बताएंगे तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल होगा सबके लिए। That was an interesting fact. Generally, on the day of Teachers' Day, generally the students praises the teachers. Yeah. But on 2018, 5 September 2018. You still remember the date and year, everything? That was a big day for you, like. और तो उस दिन सर ने क्या पूरे क्लास में मतलब मेरी तारीफ की थी कि ये 31st बिहार जुडिशियल सर्विस में ये compete करेंगे, ये हमारे फ्यूचर फौजी हैं। तो वो वीडियो मेरे पास था और मेंस के दौरान बहुत सारा कोरोना था और कोरोना के बाद बहुत सारा पोस्टपोन भी हो रहा था एग्जाम। मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग होती हैं चीज़ें, मतलब एक टाइम आता है कि यू स्टार्ट फीलिंग लो। जी, और फ्रस्ट्रेशन भी होती है उस दौरान। तो मेरे पास वो वीडियो था, मैं अभी भी उसको गूगल ड्राइव में मैं सेव करके रखा हूँ क्योंकि जनरली गैलरी में डिलीट वगैरह हो जाती थी, तो गूगल ड्राइव में था। तो मैं जब भी फ्रस्ट्रेट होता था तो सर का वो वीडियो देखता था कि अच्छा मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो वो वीडियो बहुत आपको मोटिवेट किया काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ओके सर अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी जो मतलब चीज़ें हैं, पढ़ाई, आपकी स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें इट इज़ देयर, नो डाउट इट इज़ देयर, बट देन आपके जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं लाइक योर पेरेंट्स, योर मेंटोर, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे किसी भी चीज़ में। इट्स नॉट ओनली जस्ट सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है सच, बट देन लाइफ में जो आपकी जर्नी है उसमें जो मतलब लाइक आपके जो मतलब जो आपके बैकबोन बन के रहे हैं, आपके टीचर्स, पेरेंट्स, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं बिफोर लाइक वी टेक स्विच ऑफ टू द इंटरव्यू। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अबाउट दैट कि आपके पेरेंट्स, मेंटोर्स, उनका क्या रोल रहा है इसमें। जिंदगी में सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड आल्सो फेलियर इज नॉट फैटल। द ओनली थिंग व्हिच काउंट्स इज योर करेज, कंटिन्यूइंग करेज। वेरी ट्रू। तो मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। शुरू में ही मेरे फैमिली का, मेरे फादर, मदर्स, मेरे सिबलिंग्स का,
और फिर मेरे कॉलेज के टीचर्स, और यहाँ मैं जब 2018 में आया तो सर का। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो डॉक्टर फरमान अली, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे इस सक्सेस में। ओके सर, तो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं आपके सक्सेस के पीछे, एंड देन ऑब्वियसली सर आपकी मेहनत। तो सर आप 2 लाइन बोलना चाहेंगे लाइक जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रो टिप्स अगर आप देना चाहें कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आप लोग 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें। एक परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। आप हमेशा पढ़ते रहें, फेलियर आपको मिलेगी तो वो फेलियर को आप सीढ़ी बनाएं। एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। Very nice. Okay. So thank you so much, sir, for your precious time here. It will always be our pleasure to have you here. Thank you so much for your Thank you time. very much. Thank you.